Hi everyone, and welcome to the alumni webinar series. Today we have with us Lilhare. He's the MA Development batch of 1416, and he'll be in conversation with Rajesh Joseph, who is faculty with the School of Development. Satendra will share his journey as a social entrepreneur. Before we get started, a few ground rules. Participants who have joined us, please be on mute during the webinar. If you have questions, you can type them in the chat window and send it to everyone. And towards the end of our webinar, we will have a Q&A session where these will be shared with Satendra and he'll get a chance to answer them. We are recording the session and it will be uploaded on the internet. So if you're uncomfortable with the idea of your face being seen somewhere on the internet, please keep your video off. And at the end of the session, if we run out of time and there are questions unanswered, we can create a special interest group on the alumni portal where you can continue this discussion. So welcome everyone, and over to you, Rajesh. Thank you, Nikhil, for that introduction. And it's wonderful to see a lot of my students back on this webinar series, for talk with Satender. And it's also good to again talk to Satender, who's been kind of very inspirational student when he was uh, as a student in APU. One of the things that reminds me of Satender is when we were giving a send off, Satender was the only guy who actually gave the speech very clearly to say how many days of readings he did, how many readings he did, how many exams he did, how many papers did he write, and he was precise. And we are still asking him still for that data. Okay, so with that, you must understand how Satender is. And I want to start by a conversation which I have always with my students who always say that 2 years I will be in the sector, and after 2 years, I want to do things on my own. Right? So Satender is the one of the person who has kept that what do you say, the promise, because he told me exactly at 33 months, and Satyendra will do this number game very well. Exactly at 33 months, he left the organization to start on his own. So the first question to you, Satyendra, is what made you to decide that on the 33 months that you want to go on your own? Satyendra? Yeah, thank you, Rajesh ji, and it's wonderful opportunity here. I see my fellow mate, faculties, alumni here, and thank you, alumni team also, Padmini, Padma ji, Riddhi ji, Remia ji की जिन्होंने हमें अच्छा ये opportunity दिया. And now I am coming, Rajesh ji, your question, and yes, of course. ये हमारे लिए मतलब क्या बोल सकते हैं, दिस विल बी द मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश बिकॉज आई एम हियर इन बस्तर छत्तीसगढ़ एंड लॉट्स ऑफ majority communication happening in Chhattisgarhi and Hindi with my farmers, so that I inbuilt here here also. So अपना ही क्यों, तो इसकी बहुत लंबी मतलब यात्रा है. एक्चुअली आई बिलोंग्स टू द रूरल विलेज नवेगांव इन गोंदिया महाराष्ट्र. आई स्टडीड अप टू द 10th क्लास इन मराठी मीडियम. मैं ये कॉन्टेक्स्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो पूरी यात्रा है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की, और जो हमारा जो सोशल उद्यम है बस्तर से बाजार तक, उससे मैं लिंक कर पाऊँ. तो 10वीं तक का हमारा पढ़ाई जो था अप टू द 10th क्लास गांव में ही हुआ. और दूसरा, जैसे हम हमेशा बात करते हैं मराठी में, दारिद्र रेखा, बिलो पावर्टी लाइन. तो मतलब मेरी मम्मी बोलो या मेरी फैमिली बोलो, उस इससे मतलब हम पास में गुजरे हैं. अच्छा हो गया कि हमारे पास में 2 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड था कि हम मतलब लैंड के भरोसे हम सर्वाइव कर गए और पढ़ाई हो गई, और बाद में मौसी मौसा जी ने हेल्प की. अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में आने के बाद में हमें समझ में आया कि किस टाइप से मतलब चीज़ों को देखा जाता है, चाहे वो एमजी नरेगा हो, चाहे वो कोई भी सामाजिक उद्यम हो, चाहे आपका पैडी फार्मिंग हो, चाहे वेजिटेबल कल्टीवेशन हो. Okay, तो Nina. वहाँ से निकलने के बाद में, या आई एम ऑडिबल? Yes, yes, yes. या ग्रेट ग्रेट ग्रेट.
वहाँ से निकलने के बाद में ये समझ में आया कि कैसे हमें है तो कम से कम 3 साल फील्ड में काम करते वाइल आई लिविंग यूनिवर्सिटी हैड लॉन्ग डिस्कशन विद राजेश जी, अन्नपूर्णा जी, रिचा जी कि कैसे क्या फील्ड में काम करना है। सबका एक ही मंत्रा था, कम से कम 3 साल आपको फील्ड में रहना है। कोई भी चैलेंज आ जाए, कुछ भी आ जाए, गंगा आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, सैलरी मिले नहीं मिले, पर एटलीस्ट 3 साल आपको काम करना है। ठीक है। तो वही इंस्पिरेशन के साथ में हमने 3 साल तो नहीं बट 33 महीने, बिफोर 3 मंथ, तो हमने काम किया। और जो क्लास की जो लर्निंग्स थी, जो क्लास की केस स्टडीज थे, क्लास के वीडियोस थे, क्लास के डिस्कशंस थे, उसको हमने इनकॉर्पोरेट किया। और क्यों ना, वो एक कहावत है ना कि अगर किसी की साइकिल या किसी की गाड़ी चलाओ, अगर और अब अगर आप गिर जाते हैं तो सुनना पड़ता है कि मेरी गाड़ी पहली बार लेके गया, साइकिल लेके गया और सीखते सीखते गिर गया, इसको रिपेयर करके लाओ। तो हमको लगा कि क्यों ना खुद का इंटरप्राइज होना चाहिए, और वो भी खुद का इंटरप्राइज के साथ साथ पर्पस होना चाहिए, प्रॉफिट एंड पर्पस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो वो हमने है तो टोटली स्टार्ट किया। Okay. So, uh, the other question which you asked, which it's there in everybody's mind, है ना, कि when I start, मेरे पास पैसा नहीं है ना, ये इनसिक्योरिटी है कि आई वॉज अर्निंग वेल फॉर 3 मंथ 3 इयर्स, तो पैसा नहीं आएगा. सो हाउ डिड यू स्टार्ट दिस ऑफ, आपके पास पैसा था कि नहीं था, कि गो टू अ विलेज इन बस्तर एंड से ओके हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना. तो इफ यू गिव मी दैट जर्नी, क्योंकि दैट्स द एवरीबॉडी इज बिहाइंड, नो, पैसा कहाँ से आएगा, नो, एंड दिस हैज बीन द कॉन्वर्सेशन व्हिच आई हैड विद एवरीबॉडी. सर, मगर पैसा नहीं है ना. सो इफ यू elaborate on that part, Satyendra, it will be nice. Yeah, true, true. Very much important for us, this question, and I am delighted to answering this question कि हमारी भी हालत वैसी थी, क्योंकि सोशल सेक्टर में सबको पता है कि पैसा होता है बट एक लिमिटेड होता है, एंड कमांड एंड कंट्रोल काइंड ऑफ थिंग होती है ऑर्गेनाइजेशंस में, स्पेशली बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में। और उसमें भी जो एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सेक्टर में जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, तो ये समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं कम ज़्यादा होते रहता है। बट एक एक होता है ना फायर इन द बेली, कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। तो उसमें दो बात आती है, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले अर्जेंट था कि प्रोजेक्ट को फिनिश करना है। प्रोजेक्ट को फिनिश करने के बाद में एक लर्निंग एंड रिफ्लेक्शन चाहिए कि क्या गलती हुई, क्या नहीं हुई, व्हाट वेंट, क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ। तो इसकी जो यात्राएं होती है कि लर्न फ्रॉम डिफरेंट मॉडल, फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट, हाइब्रिड मॉडल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनजीओ, ट्रस्ट, अलग अलग जगह जाके हमें समझ में आया। और उसमें एक पड़ाव आ गया, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम थी आर की विवाह रफ्तार की। उसमें हमने आइडिया को पिच किया, एंड अमेजिंगली कि जॉइंट सेक्रेटरी को वो आइडिया काफ़ी पसंद आया। और वो स्कीम में कुछ ग्रांट जैसे ही थी और ज़्यादा कुछ नहीं था। बहुत इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है। 5 लाख रुपए का उसमें ग्रांट इन एड सपोर्ट था। और हमें लगा कि हमारे पास तो ज़्यादा नहीं है, 52,000 रुपीज़ है, उसी में ऐड कर लेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। जब हम उसके रियलिटी के लिए, वो जो होता है ना एक फिडिलिटी की, और दूसरा एक होता है कि टेस्ट करना है फिजिबिलिटी, क्या होगा क्या नहीं होगा। कर्नाटक के हावेरी में ट्राई कर रहे हैं, महाराष्ट्र के विदर्भ में ट्राई कर रहे हैं, उत्तरांचल का जो नैनीताल जिला है वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, जहाँ जहाँ लोगों से कनेक्शन था कि ये चीज़ है, कैसा करना है बताओ। क्योंकि डिसाइडेड था कि अकेला मेरे से नहीं होगा। आई कैन नॉट डू सिंगल पर्सन की वो सारा चीज़ कर लूँ, मुझे कोई नहीं किसी का साथ चाहिए था। और वो साथ में भी मेरे को साथ चाहिए था फार्मर फैमिली से जो बिलोंग करे, जिसने पावर्टी देखा है या देखी है, और वो कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। उसी में छत्तीसगढ़ का जो कनेक्शन था वो काम आया। हमने उनको बोला कि ऐसा ऐसा है, उन्होंने सीधा ही बोला आपका ब्रेन है, हमारी स्ट्रेंथ है। हम वापस आए फार्मर के साथ में, पूरा मोबिलाइजिंग करके पूरा नामकरण किया, बस्तर से बाजार तक का सब कुछ किया। आखिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ग्रांट नहीं आया, बीच मजदार में फंस गए, क्या करना है। बैक एंड जो था टोटली पूरा हो गया, कहाँ कहाँ से क्या क्या करना है, ठीक है, बट पैसा नहीं आया। इवन आज भी
वो पैसा नहीं आया है, कहने का मतलब है 60%, क्योंकि गवर्नमेंट का ग्रांट डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन बहुत अलग है, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट का तो और ज़्यादा है। अब क्या करना है? देन बात है कि हिम्मत से काम करो। अगर आपने कोई चीज़ के ऊपर काम किया है, आपको एक्सपीरियंस है, लोग आपके साथ हैं, तो लोगों के साथ में हिम्मत करके हमने बोला कि सरकार का पैसा नहीं आया है और मेरे पास में केवल 52,000 रुपये है, कैसे करना है, और हमें करीब करीब है तो और 3 लाख रुपए लगेंगे, 2,75,000। फार्मर ने बोला कोई नहीं, हम तैयार करेंगे, हम अपने रिश्तेदारी से, उनके जो रिलेशन वाले जो होते हैं उनसे, वो फार्मर के जो पहचान वाले हैं, किसी ने 1,200 रुपये, किसी ने 5,000, किसी ने 15,000, ऐसे कैपेसिटी के अनुसार उन्होंने जमा किया। इसलिए हम बोलते हैं कि बस्तर से बाजार तक बूटस्ट्रैप बाय द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। उन्होंने इकट्ठा किया, प्लान ऑलरेडी था, कम्युनिकेशन सारा हो गया था, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया और पटापट पटापट सबको पेमेंट करके चीजें आई और काम में लग गए। और भगवान की किस्मत कि हमारा वो जो पायलट था, वो पायलट सुपर डुपर हिट हो गया। जिन जिन के जैसे जैसे कमिटमेंट थे वैसे उनको रिटर्न दिया गया। अब एक चीज समझ में आ गई कि अब इसको स्केल करना है, तो ऐसे से काम नहीं चलेगा। देन वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म एंड अदर चीज सामने आई। तो सतेंद्र, यू जस्ट लेफ्ट मी देयर कि कैसा शुरू किया, राइट? बट वेरी इंक्रीडिंग इन अ वे, वी ऑलवेज लर्नड अबाउट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन. आप भी, you also worked in FPO, right? But when you started your organization, you FPO छोड़कर private limited, is it not? Now I want this decision, है ना? क्यों? Why did you choose a private limited company when you were working in FPOs, right? Oh, FPOs, you worked in FPO, you were a CEO previously when you worked in FPO, but once you wanted to start on your own, this sudden shift, है ना? So I just wanted to एग्जैक्टली know about it, but I also wanted to know the ideology behind this kind of it. Is it a big ideology shift or what it was? एग्जैक्टली, एंड इट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये सबके मन में होता है कि चालू करे तो कैसे करे, और वो एक दूसरे से लिंक होता है। जैसे राजेश जी ने बोला पैसा, तो ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस था फॉर मी। आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑन अराउंड 1 ईयर कि क्या, कौन, विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म सुटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर मॉडल। ठीक है, 1 साल तक उसके लिए हमने सोचा था। एंड वी स्टार्टेड विथ सिंपल बेसिक थिंग एज अ रजिस्टर्ड फॉर्म। द any kind of business, if you want to start or do anywhere, so starting with the registered firm because the legal entity, and that registered firm comes under the startup definition। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टार्टअप्स का पॉलिसी है, दैट वहां से स्टार्ट होता है। तो ये हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में। बट राजेश जी ने पूछा है कि प्राइवेट लिमिटेड और एफपीओ। प्रीवियस आई वाज अ सीईओ फॉर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। आए 30,000 की कंपनी को करीब करीब 1.75 करोड़ तक लेके गए, नाबार्ड से अवार्ड मिला, सब कुछ अच्छा हुआ, सस्टेनेबल मॉडल हुआ। बट 19-20 होता है, और मैं इसको लिटिल लॉन्ग भी लूंगा, इट विल टेक अराउंड 3 to 5 मिनट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजेश जी का, और ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके पीछे ना बहुत सारी चीज़ें हैं, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, और हमने क्यों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया है। तो सबसे पहले ये था कि मेरे एक्सपीरियंस में ये समझ में आ गया था कि एफपीओ मॉडल सही है। एफपीओ इज़ आल्सो गुड मॉडल, उसको क्रिटिक करना गलत नहीं है, पर डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट, कमोडिटी टू कमोडिटी, पर्सन टू पर्सन। और मेजॉरिटी जो फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी होती है, वो जो है ना, वो प्रोफेशनल या एंटरप्रेनर लीड नहीं करते, उसको लीड नहीं करते। कहने का मतलब उसके एन नंबर ऑफ रीजंस है। बट पर से अगर किसी प्रोफेशनल ने या एंटरप्रेनर ने उसको रन करना चाहा, देन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है एनजीओ का। ठीक है, जैसे कि हम यूनिवर्सिटी से एपीओ में आए थे, तो हमको यूनिवर्सिटी ने रिक्रूट किया था, प्रोड्यूसर कंपनी ने रिक्रूट नहीं किया हुआ था। सिंपल थिंग है। दूसरा है गवर्नमेंट के लॉज और पॉलिसीज। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो इंडिया में हमेशा होता है, अगर कोई आरटीओ ने आपकी गाड़ी रोका तो सबसे पहले लाइसेंस मांगता है। इफ यू सोन द आधार कार्ड और इफ यू सोन द पासपोर्ट और बैंक अकाउंट, वो नहीं मानेगा, वो बोलेगा लाइसेंस चाहिए, इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। वैसे ही बिजनेस एंटिटी के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्म होते हैं। ये दो चीज़ था। तीसरा ये था कि जो मेन जो चीज़ें होती है फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी में,
उसमें क्या होता है कि मेजॉरिटी ग्रांट बेस्ड सिस्टम होता है। एक बहुत बड़े अगर 20-25 एकड़ का अगर फार्मर है, अपना पैसा लगाने को चाहता है, और बहुत अच्छी चीज़ प्रोफेसर ऋचा जी ने और अन्नपूर्णा जी ने अपनी जो स्टडी किए हुए है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, उन्होंने बहुत अच्छे से उसमें लिखा गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पता भी नहीं होता है कि सीईओ कैसे अपॉइंट होता है और कैसे कार्य प्रणाली होती है गांव में, और चले अपन एफपीओ बनाने। तो हमने ये इंटरवेंशन किया कि मार्केट फेसिंग कंपनी कैसे, वो मार्केट फेसिंग कंपनी मार्केट में जाके कैसे अपना इंटरवेंशन को बढ़ा के, क्योंकि जब तक अगर स्केल नहीं होगा, जब तक अगर लोग जुड़ेंगे नहीं, तब तक होगा नहीं। और सबसे बड़ा बैरियर है प्रोड्यूसर कंपनी में रेजिंग फाइनेंशियल कैपिटल। पैसा रेज करने का पहले भी बहुत प्रॉब्लम था, अभी भी बहुत प्रॉब्लम है। तो जब हमने ये स्टेट की पॉलिसी, सेंट्रल की पॉलिसी, अपना एक्सपीरियंस, नीति आयोग का रिपोर्ट, फार्म प्रोड्यूसर कंपनी के एन नंबर ऑफ बुक्स, उसके जो आर्टिकल्स और जो वास्तविक जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, डिस्कशन करके समझ में आया कि लॉन्ग टर्म में अगर अपने को जाना है, कम समय में अच्छा काम करना है, प्राइवेट लिमिटेड विल बी द बेस्ट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड ये है कि इफ़ यू गो डाउन, आप पहले जाते बैक में हिस्ट्री उठा के देख लो, चाहे टाटा की देखो, अडानी की देखो, आप महिंद्रा की देखो, इवन विप्रो में मिस्टर प्रेम जी का आप देख लो, कोई भी एंटिटी है उन्होंने फॉर प्रॉफिट फर्स्ट उन्होंने किया है, देन वो नॉट फॉर प्रॉफिट, एफपीओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो आया है। तो कहने का मतलब ये है, कमोडिटी के हिसाब से, पर्सन लोकेशंस के हिसाब से, करंट जो हमारी जनरेशन है, करंट में क्या चाहिए, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म हमने प्राइवेट लिमिटेड डिसाइड किया। बट ये प्राइवेट लिमिटेड में फार्मर इज द शेयर होल्डर, दैट्स द मेन की थिंग। इसमें ये नहीं कि इसमें कोई कॉरपोरेट लोग इसमें हमारे साथ में नहीं, फार्मर हमारे मेन शेयर होल्डर है। और एफपीओ में क्या होता था, सबसे बड़ी लर्निंग, सीईओ क्या होता था, अपॉइंट होता था, बट उसके ऊपर भी बहुत हायरार्की होती थी, इंटरनल हायरार्की बहुत होती थी, तो उसको उतना फ्रीडम नहीं मिलता था काम करने के लिए। तो उसको भी लगता था सीईओ इट कैन नॉट बी शेयर होल्डर इन द प्रोड्यूसर कंपनी। तो हमको लगा कि क्यों ना खुद ही ट्राई करना चाहिए, अगर हम शेयर होल्डर अगर बने हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, खुद उसको रन करके दिखाते मार्केट फेसिंग कंपनी के हिसाब से। दैट्स द होल थिंग। Okay, so just for thing for English speakers, so I'm just going to do a short translation of what Satyendra said. Was that when I asked him why did he choose between a private limited company and FPO, which Satyendra was a CEO before, Satyendra answers was that look at the product and try to make a uh, informed choice. And Satyendra made that informed choice, and he gave a lot of examples of, he looked at all the reports to see which is a great choice that he did. One of the things Satyendra was saying was that if you're a CEO in a private limit, in an FPO, you are not a shareholder in the FPO, right? So Satyendra was saying that why not I myself become a shareholder in the company? That means you have more accountability or more stake in that company. And it's not that the private limited company has got many others who are just investors, outside investors. Satyendra's company, the outside investors are the farmers themselves, including Satyendra and others who have put the money. And I think he gave a background when he didn't have the money, the farmer said that I'll put the money. So that is where the thing was that the private limited company, the shareholders are the farmers themselves. So you don't have anybody outside who's kind of a sleeping capitalist who's putting the money into the company. I mean, is that right, Satinder, in a way? Yeah, exactly true, sir. Exactly true. Yes. Yeah. Okay. So I'm going to go to the third question here because it came to the commodity one, right? And I know this is the first thing that will always happen, as you said, which is the first commodity to choose, right? And we all know that you choose Sitapal if I go to your website. But I also want to know that because around that, the players in that field, uh, especially the FPOs around that field, did work with Sitapal. I mean, if I'm not wrong, I don't want to know which one was that. But why did you, what was your model different from those models, right? Were you aping those models or did you find something different to do with the same product?
Exactly. This is Yeah. also one of the uh, great things, and related to the, yeah, इसमें I will go starting with this कि whenever anyone starting any company or any enterprises, for us also, we narrow down our domain. First is the agriculture, then below agriculture forest, then forest के अंदर में करीब करीब 52 kind of minor forest produce is happening. Then we selected one, started with one single commodity, custard apple. और C का जो custard apple है, we think three things. First, community. Second, कस्टमर. एंड थर्ड, कॉम्पिटिटर. 3C थिंग, ठीक है. और चौथा है ऑलरेडी कस्टर्ड एप्पल का C. तो जो कस्टर्ड एप्पल जो है, वाई वी सिलेक्टेड दिस अगेन लिंकिंग टू द स्ट्रैटर्जी first and link to the our business model. So our strategy is first thing. The evaluation of Bastar se Bazaar tak name itself shows that कि understanding the unmet need of the community, unmet need of the smallholder tribal woman farmer in the region. I alone cannot do the thing. अकेला मैं पूरे भारत में काम नहीं कर सकता, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वन फार्मर, वन फार्मर, इवन वन विलेज, इवन वन प्रोडक्ट. We started with custard apple. Simultaneously, custard apple problem is the perishability. Not more than 72 hours में वो खराब हो जाता है, पानी वो छोड़ देता है. Perishability is the high perishability. Similarly, jamun high perishability, raw desi mango high perishability, even tamarind also high perishability. Even climate change, tamarind में moisture आना चालू हो जाता है. तो community की need क्या है, and that need how we can align to the market. Then we started our strategy. Approach क्या होगा, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप. टॉप टू बॉटम में आता है पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सीड सप्लाई टू द फार्मर, दैट आल्सो नीड. बट द मेन थिंग इज द कि बॉटम से टॉप कैसे जाएगा, बॉटम टू टॉप अप्रोच. बस्तर टू बाजार, बस्तर इज द बॉटम, बाजार इज द अराउंड द कंट्री, दैट मेन थिंग. तो इसी के साथ जो कस्टर्ड एप्पल जो है हमने स्टार्ट किया कि यहाँ पे कस्टर्ड एप्पल ज़्यादा होता है, पेड़ में सूखा रहता है, कोई तोड़ता नहीं है. और लोगों को कैसे सिलेक्ट करना है, वेयर आई एम सिटिंग हियर, यहाँ से हमारे 65 टू 80 किलोमीटर दूर हमारे विलेजेस है जहाँ पे ज़रूरत है लोगों को काम करने के लिए. वहाँ से हम लोग हमारा प्रोक्यूरमेंट, पूरा एग्रीगेशन, पूरा लॉजिस्टिक, पूरा ट्रांसपोर्टेशन उस टाइम से हम करते हैं. तो स्टार्टिंग विथ वन प्रोडक्ट कस्टर्ड एप्पल. और मार्केट में उसका नीड है, कम्युनिटी को भी नीड है उनके एडिशनल लाइवलीहुड के लिए, मार्केट में भी नीड है कि नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट चाहिए. दैट द बैलेंस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन हमने उस टाइप से किया फार्मर के साथ में बैठ के, एंड स्टार्ट द मेन थिंग. Yeah, but या what I wanted to ask Satendra was when I was also speaking to you, and this was a shot of Satendra's one taking Sitapal and Jamun and Tamarind. But what I wanted to ask was कि ये Sitapal का what you said was running the cold storage की pulp का problem था. But I also wanted to know that because even others were doing the same thing, है ना? Doing cold storage and selling. What was unique selling point for you, आपका एग्जैक्टली, customer का? exactly. The unique selling point I'm linking to the competitors. And the best way I always learn from my competitors. Okay. So earlier there is a place called as a Pune in Maharashtra, and near to Pune there is a hub for the farming of the custard apple. And there is a क्या बोल सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन, वाटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सब चीज़ वहाँ पे देते हैं फार्मिंग में. और उसका पल्प आता है मार्केट में, बट वो पल्प का टेस्ट नहीं होता है, अडल्ट्रेशन भी होता है, उसमें चीनी ऐड किया जाता है, करीब करीब 17.5% उसमें चीनी ऐड होती है, ठीक है. और लोगों को चाहिए नेचुरल फॉरेस्ट वाला, उनका प्राइस भी कम है. आवर प्राइस ऑलमोस्ट डबल देन द पुणे बेस्ड पल्प.
तो सबसे पहले जैसे राजेश जी ने पूछा कि यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, तो हमारा सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि थ्रू आउट द डिलीवरी एट देयर डोर स्टेप फर्स्ट, second, that the thing is doing by the farmer itself only. Farmer at the village level procurement, central level we have a processing unit, at the marketing level we have a farmers children's team. They are doing unique way this marketing kind of thing. And third one is the, क्या बोल सकते हैं, जैसे वी स्टार्टेड विथ रायपुर, सो रायपुर इज द राजधानी ऑफ छत्तीसगढ़ एंड बस्तर इज द पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़, कि हमारा छत्तीसगढ़ का प्रोडक्ट है, वी हैव टू फर्स्ट बाय दिस प्रोडक्ट। तो ये जो चीज़ें थी, हमारे जो टारगेट कस्टमर्स जो जैसे थे, हमारे टारगेट कस्टमर्स आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम रायपुर, कैटरिंग वाला छत्तीसगढ़ से, हमारा भिलाई से, देन हमारा रिटेलर्स छत्तीसगढ़ से। सो देन दैट रिलेशन, वो कनेक्शन और वो जो पर्पस कॉज वाली बात है कि उनको यहाँ लेके आना, उनको पूरा दिखाना कि कैसे कैसे हम काम कर रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि अगर आप हमारे से ज़्यादा भी अगर आप हमारे से चार्ज कर रहे हैं और इतना अच्छा आप हमें सर्विस दे रहे हैं, इतना अच्छा क्वालिटी दे रहे हैं और आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं हमारे ही छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, हम क्यों ना आपसे लेंगे, हम क्यों बाहर का पल्प को लेंगे। सो इस टाइप से हम वो मार्केट के कंपटीशन में आए, सर्वाइव किए और आगे जा रहे। Yeah. So I'm going to come with the next slide, which was there, okay, which I just put it because we were talking about this B2B customer, है ना? So you also did B2C customer, है ना? And Yes. what was your reaction? I like to know that, right? In the end, you somehow came back to B2B, but if you give us the reason, it'll be a nice way of looking the reason kya hai, to which product did you choose, though you like the B2C customer. I can just see that, you know, you sold in the juice stall and in all the stalls and everything. Yeah. Exactly. This is also another interesting story. Actually, we incorporated and we started as a B2B. But what happened? One of the buyer, उन्होंने पूरा मतलब अच्छे से सब कुछ जानकारी वगैरह ले लिया, सब कुछ हुआ, और सडनली ही कि अरे आपका तो पल्प ऐसा है। मैं बोला ठीक है, नो वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बहुत इंपॉर्टंट चीज़ होती, जिद्द, ठीक है, मराठीमध्ये जिद्दी म्हणतात, इंग्लिश में तो पता नहीं, एक जिद्द होती है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, विद इन द 2 मंथ कमिंग टू हियर अगेन डिड मीटिंग कि B2C में कैसे आना है। इफ our buyer buy our product 1 kg and making 16 kg of juice and earning 4 times more, so we also tried, tested successfully. In Raipur there is a heart of the city called Ravi Bhavan, where we buy the rented the place. हमारी फार्मर की 7 लोगों की टीम, वी ट्रायल किए, टेस्ट किए कैसे कैसे हमको बनाना है। An amazing response during this 3 month at the Raipur. We sold around 84 carats of our pulp, around 35,000 kgs, ठीक है। उसका इतना प्रचार प्रसार हुआ, मिनिस्टर कहाँ कहाँ से सब लोग आए, बहुत अच्छा हुआ। बट सेकेंड वेव आ गई कोरोना की, तो हम है तो फिर वापस आए हमारा जहाँ बस्तर है वहाँ पे, क्योंकि सेकेंड वेव में रायपुर में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डेथ केसेस बढ़ने लगे। बट यस, वी ट्राइड B2B आल्सो, B2C आल्सो। B2C में हमें बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला, और होपफुली हम B2C में आएंगे, नॉट नाउ बट इट विल टेक अनदर 6 to 12 मंथ, क्योंकि उसके लिए इन्वेंट्री कॉस्ट मैनेजमेंट थोड़ा लगता है। B2B वी हैव ऑलरेडी, वी हैव इंस्टीट्यूशनल बायर एंड अदर थिंग। B2B में हमारा सेट है, B2C में और हमें 1-2 ट्रायल एंड टेस्ट हमें करना है। दैट्स द Okay. मेन थिंग। Okay, so the next question I want to ask is, yes, you started with Sitapal. Now, if I see you have 3 other verticals, है ना? You have dry Yes. mango, imli, jamun, है ना? But can you just Yes. give a little for our thing? ये कैसा हो रहा है? I mean, from the pulp to your, remember we had this nice conversation, आपका chilling plant है, you know, that's the more
thing you did, वो auto wala ka kahani and all that. It'll be nice to see your, how did you look at this whole product of, from बस्तर से बाजार तक, है ना? ये कैसे किया था? एग्जैक्टली, दिस इज ऑल्सो गुड राजेश जी। बिल्कुल सही बात आपने कहा है, और हम इसको ज़रूर बताना भी चाहेंगे, क्योंकि वी स्टार्टेड विथ वन प्रोडक्ट, मार्केट हमने स्केल कर लिया और आगे और हमारे पास उसके मार्केट्स आ रहे हैं, बट वी हैव अ हियर फार्मर्स, those farmer having already custard apple also, mango also, tamarind also, and even jamun also highly perishable. Okay, and if we are entered in the market, then the other person and the same person also, they also demanded कि आपके यहाँ क्या क्या है, आप और हमें क्या क्या अच्छा दे सकते हैं नेचुरल चीज। एंड वी ऑलरेडी प्लान कि क्या क्या कमोडिटी है जो हाईली पेरिसेबल है बेस्ड ऑन द सीजनेबिलिटी मैपिंग। ठीक है, और उसके हिसाब से हमने ये मॉडल बनाया कि कैसे अपन अश्योर्ड 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ दिस वैल्यूबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जब जब फार्मर घर में रहता है तब तक ये कमोडिटी आती है जंगलों में और उसको प्रोसेस करके हम देते हैं। कोल्ड स्टोरेज है, वहां से हमने जो ऑटो वाला है, ऑटो वाले हमारे हैं, ऑटो वाले वहां से डिलीवरी दे देते हैं। जब इवन सम बायर आस्किंग 10:30 रात में भी 10:30 बजे डिलीवरी चाहिए, मिल जाएगी, डिलीवरी हो गई। अभी 2 दिन पहले डिलीवरी होगी, मैं महाराष्ट्र में था, उन्होंने बोला कि हमें अर्जेंट चाहिए। तो कस्टमर को समझ के और इधर कम्युनिटी को समझ के और फार्मर के साथ में मिल के ये पूरी योजना तैयार की, और उसको हम लोग है तो अंजाम दे रहे हैं, और आने वाले समय में इसके अलावा और ज़्यादा प्रोडक्ट रहेंगे। रीज़न ये है कि जैसे जैसे ये प्रोडक्ट आगे जाएगा वैसे वैसे मार्केट में हमारा एक्सपांसन होगा, एक्सपांसन के साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और बाय डिफॉल्ट अगर कभी सैचुरेशन अगर आता है तो कंपनी की सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी। अगर एक प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट कुछ हो गया क्लाइमेट चेंज के कारण, या कुछ बारिश आ गई या कुछ हो गया, तो अदर 3 वर्टिकल में कंपनी खड़ी रह जाएगी। 2 अगर खराब हो गया तो 2 में खड़ी रह जाएगी। दैट्स वाई सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू वी आर एडिंग मोर एंड मोर प्रोडक्ट based on the perishability and availability in the market throughout the year, and also demand from the buyers. Okay. So because you said that, I mean, I was just going through your financials, and I was just saying that the last year you did around 12 lakhs, around 13 lakhs ka len den ka tha, है ना? So what is your plan? How much do you want to do this? I mean, uh, 13 lakhs ka len Exactly. den hai? Yeah, up to the हाँ, March 31st, yes, correct. And this closing of 30th September 2021 around 44 lakh rupees. And yeah, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। एंड फॉर फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से यस, बिफोर क्लोजिंग दिस फाइनेंशियल ईयर वी आर रीचिंग टू द 1 crore rupees, इवन based on industry standard 33% profit margin. And after that, from next year April 22 onwards, we are planned to set up a full-fledged Bastarian Mahila run factory, और दैट वुड बी आल्सो इन द इंडस्ट्रियल एरिया। आज़ादी के बाद में फर्स्ट टाइम नियर टू आवर लोकेशन इंडस्ट्रियल, वो जो होता है औद्योगिक क्षेत्र जो जिसको बोलते हैं, वो आया हुआ है। तो वहाँ पे हम लोग है तो इसको शिफ्ट करेंगे। वो सोलार एनर्जी बेस्ड पूरी फैक्ट्री रहेगी, और बस्तर की जो महिला है करीब करीब 92%, यानी वो फैक्ट्री में करीब करीब 90% महिलाएं उसको वो रन करेगी। ऐसा हम उनको स्किल्ड, ऐसी कैपेसिटी, ऐसी ट्रेनिंग हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। हो सकता है वो आईआईएम लखनऊ से हो, या हो सकता है आईआईएम कलकत्ता से हो, और उसके बाद में है तो वो सारा चीज़ें तैयार होगी। और उसके बाद में एक प्रोडक्ट के अंदर फिर अगेन सेगमेंट्स आएंगे। फॉर एन एग्जांपल कस्टर्ड एप्पल 1, custard apple pulp में we have a 4 pulp, and from one custard apple we have another 14 product। तो ये सारा बनेगा और इसको दूर तक लेके जाएंगे। देन बाजार, बस्तर से बाजार तक का जो हमारा मिशन है वो पूरा होगा, और बाय 24 तक हम 4000 फार्मर को रीच करेंगे। ये हम लोगों ने अपने विजन स्ट्रैटेजी में पूरे किसानों के साथ में बात किया हुआ है, और उसी के ऊपर हम आगे भी जा रहे हैं, और भगवान हमें
और अच्छे से आगे लेके जा रहे हैं, ये बात है। Okay. Uh, that's nice to hear, Satendra, because just to say that what you said was that we were 26, we were 12 lakhs, and you are already doing 44 lakhs, is it? Yes, That's what you said. By yes, September, you are already doing 44 lakhs, and you'll be reaching 1 crore this year. yes, Is it not? In yes, just yes, because yes, I just want to perfectly, yes, sir. translate to people what we are going to, what you wanted to say, and your plans is to set up a kind of a factory in the industrial area of Chhattisgarh, is it not? Which will give, Yeah, which you want yeah, to reach yes. out around 4,000 women. Yeah. So how many are you reaching now, Yes. Satyendra? I mean, I forgot to ask you that. 920, sir. 920. 920 920. That's a quite till a date. lot. 920 farmers, assuring around 100 days of employment with different verticals. I like the way you said that you looked at seasonality, and that was one of my Yes. thing in the livelihood workshops when I used to say about look at seasonality Correct, of the correct. product, Yes. right? Yes. And and of course, what you said, because I remember that you also won a lot of prizes now, and I know got a lot of money on that, and you also got 35 lakhs as a grant or equity now from the government Yes. to start this off. Ye- Is it not? If I'm Yes, not yes, wrong, yes, yes. right? Yes. So Yes. uh, I think I will stop there here because I will try to take more comments from everyone, right? So one of the comments which actually came before was, which I'll ask you, what was the challenge for you to organize the women? You got it, to do this because women to ye company kya hai, is it not? You're saying suddenly give company ye company because they were giving to Correct. middlemen. Suddenly you're saying ye aapka company hai and all that stuff. Yeah. Yes, yes. So what is the challenge in that part? So it will be nice to hear from that because I know there was one of the comments which came to say what is the challenge to do this. Exactly, sir. And I And want this challenge also to say what is the challenge personally for you because yes. everybody will say that आपका कितना पैसा मिल रहा है. Correct, correct, true, true, true. That all think this is the good platform right now, and I can explain all these details and all these things because that your robots transfer and accounting system and all these things because of Upaya Social Venture from Seattle, USA. They invested 50,000 US dollar, and now Tata Group. So you maybe know the investment criteria and due diligence process and all these things, so that we are maintained in past and present, good, no problem at all. And related to the challenge, yes, before facing challenge, I hypothesis, मतलब वो assumption होता है ना, क्या क्या चीजें हो सकती है फील्ड में। जैसे अपन जाते हैं, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एक सब्जेक्ट था, लिस्ट बना लेते हैं कि क्या क्या अपने को करना है। तो मुझे पता था कि क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, और वो चैलेंज से कैसे अपने को आगे जाना है, हाउ टू ओवरकम दैट चैलेंज, वो भी मैंने थोड़ा सा प्लान करके रखा था। और वो गांव में कैसे क्या होता है, स्पेशली बस्तर में ट्राइबल फार्मर्स के साथ में, वो मेरे को अंडरस्टैंडिंग थी पास्ट में। सो व्हाट आई डिड, सबसे पहले मैंने क्या किया, फार्मर के यहाँ पे ही रहना है, कहने का मतलब है दूसरी जगह पे नहीं रहना है रेंट वगैरह से। उन्हीं के साथ में लंच डिनर करना है, उन्हीं के साथ में उनके खेत में जाना है, देयर फार्म फील्ड, उन्हीं के साथ में विलेजेस जाना है। फर्स्ट कन्वे, उनको पहले एक फार्मर फैमिली को मुझे समझाना था, कहने का मतलब है कि लॉन्ग टर्म में हमें क्या करना है, यहाँ पे वास्तविक प्रॉब्लम क्या है, कैसे उसका अपन सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो एक फार्मर को समझाने में मुझे करीब करीब 6-7 महीने लग गए, एक फार्मर की फैमिली को। और जब वो समझ गए, तब अपन अलग अलग Did we lose Satyendra? Yeah, looks like. I Yeah. think the net So, was bad towards the end. We try to get in but touch with him. yeah. But just to say what Satyendra was saying, the challenge was that how he
actually stayed there and actually trying to convince women. And the main point he was saying is if you convince one woman, and I think that's the easiest part. The moment you convince one woman, and then he was able to convince others to be part of his venture. But he said it really took 1 month to convince one woman to be part of his venture. So I assume that he could have spoken to many more people before somebody said were convinced of his idea, right? So is he there? Is he going to come? Let me call him. We're still trying to get in touch with him. Let's see. Yeah. Yes, Satinder? Okay, okay. Yeah, he just had to unmute him. He's in the screen. Okay, I'll do that. Yeah, Satinder? Okay, great. Yeah, Yeah, sorry. sorry. Yeah, go ahead. Yes. So that's the biggest challenges ki overall model, overall market scenario, market dynamics, करंट कॉन्टेक्स्ट, ये सारा चीज़ समझाने में मुझे करीब करीब 5 से 6 महीने करीब लग गए. एंड वंस दे अंडरस्टूड वेरी वेल, रैपिडली कैसे हम 920 तक आ गए पता नहीं चला. So it was a really 5 to 6 months groundwork. Is that Yes, what you're saying? yes, Right? yes. So for others who are thinking that it's going to be a smooth ride, I will do it and immediately people are going to come. It's just a reminder that you have to do the hard work of convincing people. At least it will take to 5 to 6 months to work on the field to convince people that this is my great idea. Is it not, Satyendra? Yes. Yeah. So I'll also now open uh, open for questions from others. If anybody has got any questions for him, um, since it's a small group, you can raise your hands and we can allow Nikhil. Yeah, sure. Yeah. Yeah, Ganesh, go ahead. Ganesh, go ahead. Ganesh, you should be able to unmute yourself. Everyone has that access now. Okay, anyone else? I mean, we'll try to look at Ganesh. Okay, Parvesh, go ahead. Oh, they are saying they are unable to mute Nikhil. Yeah, try now. Hello? It should work now. Yeah. Yeah, this will work now. So Ganesh, Hello? yeah, go ahead. Yeah, I was wondering about one thing is about the consistency. We can start this work for a month, 2 or 3, but keeping it in our ups and downs, there I find a lot of challenges, because even in our day-to-day life, if we want to start any project or any kind of task, we may do for a month or two, but there is a point where we could not continue it or could not keep it as a consistency. So if Satindra could tell us about the consistency. नक्की गणेश दा, नक्की आभार. uh, I know Ganesh is working in BBC and he is also from Solapur near to Karnataka border. So छान प्रश्न आहे. And always be कंसिस्टेंसी बोलो या सस्टेनेबिलिटी बोलो, ये मेजर सक्सेस होता है कोई भी सोशल इंटरप्राइज या कोई भी चीज़ के लिए. तो हमारे पास कंसिस्टेंसी है. What we are doing, yes, this is also true ki the forest produce coming on their season only. So for an example, custard apple 45 days max to max, tamarind around 3 to 4 month, mango also around 1 month, and jamun also around 25 to 27 days. So what we are doing during the season,
During the season, we are processed all these things and kept in the cold storage. The model itself, tamarind required cold storage, custard apple pulp required cold storage, jamun slice required cold storage, and even आमचूर also required cold storage. ठीक है, वो चारों कैटेगरी को कोल्ड स्टोरेज का रिक्वायरमेंट होता है. तो व्हाट वी आर डूइंग, वी हायर द रायपुर बेस्ड कोल्ड स्टोरेज. एक कोल्ड स्टोरेज हमने कर्नाटका के विजयपुरा में भी लिया हुआ है, आंध्रा और कर्नाटका में डिलीवरी के लिए. तो कोल्ड स्टोरेज में हम रख देते हैं और फिर वहां से जैसे 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 ऑर्डर्स होते हैं वैसे वैसे हम उनको डिलीवरी करते हैं. फर्स्ट, बिफोर वी हैव सम ऑर्डर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल बायर, ड्यूरिंग दी आवर वर्क ऑन गोइंग प्रोसेस, उस समय में हम उनको डिलीवरी कर देते हैं. कुछ लोगों को जो होता है उनको साल भर लगते रहता है. दैट्स द मेन की. हमारा सस्टेनेबिलिटी का मेन पार्ट ये है, कस्टमर ने ऑन डिमांड किया 10:30 को चाहिए, 10:30 के पहले उसको डिलीवरी चाहिए. तो इस हिसाब से हमने वो पूरा किया हुआ है. कहने का मतलब है इस चीज का ही हमने सबसे ज्यादा ध्यान रखा हुआ है कि कैसे वो रहेगा. अगर आपने आज मांगा और अगर हमने आपको कल नहीं दिया, मॉडल फेल. कहने का मतलब ये है कस्टमर टूट जाएगा ना. विदाउट मार्केट और विदाउट बायर्स फिर हम क्या करेंगे. सो उस चीज का हमने बखूबी ध्यान रखा है. मेन चीज ये, उसके लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं है. Can I ask second question in case? यस यस, गो अहेड. Ganesh, if you have time, let Parvesh ask and let us do Sure. that. Yeah, Parvesh, go ahead. I Hello, think we should have sir. done this in Marathi. I think a lot of them are Marathis here, is it not? Yeah, Parvesh, Yeah, go I am ahead. also Marathi. Sir, 1 minute, sir. हेलो सत्येंद्र सर. नमस्कार जी. हेलो, नमस्कार सर. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी मैंने 2 महीने पहले एक इंटर्नशिप किया एफपीओ में, जो कि नाबार्ड स्पॉन्सर प्रोजेक्ट था, जो डेटा कलेक्शन का था और रिपोर्ट एनालिसिस था उनका. फाइनेंशियल जो भी स्टेटमेंट है, तो जो सी और डी ग्रुप के थे जो एफपीओस थे, तो उनका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी लूज था, है ना. जैसे कि उनका जो मार्केट कैप्चरिंग एरिया काफ़ी कम था, उनके प्रोडक्ट्स कम थे, उनके जो शेयर होल्डर्स है वो भी काफ़ी कम थे. तो इसके पीछे का कारण क्या है, उनको कैप्चर करने के लिए इतना देर क्यों लग रहा है. वो ये भी बोल रहे थे कि उनके पास जो परमानेंट सीईओ है वो भी नहीं है. ऐसा क्या कारण रहा उनको कि ऐसे प्रॉब्लम फेस करने पड़े होंगे. बिल्कुल. तो आपको ये अगर महाराष्ट्र का वास्तविक ही है, अगर जैसे कारण वर्धा जानने का डिस्ट्रिक्ट में का. होगा तो मैं जरूर बताऊंगा. क्योंकि अर्लियर आई वाज आल्सो एसोसिएटेड विद नाबार्ड. ठीक है. तो एक्चुअली क्या होता है ना, नाबार्ड के जो एसोसिएट जो पॉपी होते हैं, पॉपी मीन्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशन, एनजीओ, लोकल एनजीओ. ठीक है. वो लोकल एनजीओ एफपीओ को प्रमोट करते हैं. ये हार्ड को रियलिटी है कि उस टाइप का जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कभी नहीं चाहता है कि प्रोड्यूसर कंपनी आगे जाए. ये हार्ड को रियलिटी में बता रहा हूँ. अगर आपने पूछा है और ऑलरेडी आपने तो काफ़ी लोगों का इंटरव्यू लिया होगा, एफजीडी इंटरव्यू वगैरह सारा लिया होगा, बट मेरा ये एक्सपीरियंस हाँ है कि वो सर. कभी नहीं चाहते हैं. उसका रीज़न भी होता है क्योंकि वो ग्रांट बेस्ड मॉडल होता है. वो सीईओ अपॉइंट करेंगे, ऑफिस में मैनेजर रखेंगे, वही एनजीओ के पर्सन को ही उसमें दिखा देंगे. कहने का मतलब है वो जो बजट आता है वो कैसे क्या जाता है पता नहीं. तो ये एक मेजर चीज होता है. बिजनेस को बिजनेस जैसे देखना है, कहने का मतलब है. और जो बैलेंस है पर्पस और प्रॉफिट का, वो अगर मैच हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है. एनजीओ के पास में अच्छे खासे बजट और होता है, वो कर सकते हैं. कहने का मतलब है. बट वो अपने अपने लूफुल्स और ड्रॉबैक्स होता है कि एनजीओ का पर्सन उसको कैसे रन करना चाहता है, कैसे वो लेके जाना चाहता है. रहा सवाल नाबार्ड का, तो नाबार्ड का जो फंड्स यूटिलाइजेशन का जो क्राइटेरिया होता है वो काफ़ी टफ होता है. एन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स उनको लगते हैं क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसी है, आरटीआई के अंडर में आती है. तो उनके पास में ऑलरेडी सारा चीज़ रहना चाहिए. और वो अनेबल हो जाते हैं प्रोड्यूसर कंपनी का मैनेजर या सीईओ कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाऊं, सबका पैन लाऊं, ये लाऊं वो लाऊं, एमसीए की फिलिंग करूं. इसके कारण भी है तो वो प्रोडक्ट में डिले आता है. मैंने बोला ना कि एक्सटर्नल कैपिटल जब तक रेज नहीं कर पाएगी प्रोड्यूसर कंपनी, या फिर उतने मेंबर्स का उतना कैपिटल अगर नहीं रहेगा, तो वो जान नहीं आएगी उस एपीओ में, वो प्रोडक्ट में वो बात नहीं आएगी. ये सिंपल चीज थी. Okay. हेलो हेलो Do, हेलो. wait one हेलो सर. minute. So, just to what
Satendra said for that, what it was I think Satendra was a little more on what the NGO model was with the FPO, but he was more saying that unless a company has strength to raise external resources, you will not be able to keep the company alive. Is that what Satendra you said? Yes, perfectly Yes. fine, sir. Yes. Yeah. So I'll give to Ranjit Kumar to ask question, and Sir, then just Nagraj. I want to ask one thing. Hello? Parvesh, we'll come back because there are a lot of them. So even Kailash Okay, sir. has Okay. said something. So we'll go with that, right? Ranjit, Sure, yeah. sir. Sure, sir. थैंक यू राजेश सर. हेलो सतेंद्र. सो नमस्ते जी। मुझे एक चीज पूछना था कि पूरे डिस्कशन में मैंने जो बहुत गहराई से सीखा या देखा या समझा है वो ये है कि आप जो बात कर रहे थे ये फेथ बेस्ड सेलिंग, मतलब विश्वास आधारित विक्रय का जो आपका फॉर्मूला है ना, कि ये जो है वो एक बिलीफ है, एक फेथ है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, चाहे इसे महंगा भी मार्केट में क्यों ना मिल रहा हो, लेकिन मार्केट में से ये महंगा में क्यों ना हो, लेकिन मुझे इस पे विश्वास है, ये लेना है ना. तो इसको एक जटिल प्रक्रिया इसको बोल सकते हैं, ये आसान नहीं है, वेरी कॉम्प्लेक्स लाइक. सो हाउ कुड यू मैनेज दिस? कैसे इसको कैसे आपने मैनेज किया? इसको स्टार्ट में जब आपने ये किया, ये चीजें आई कैसे, ये डेवलप कैसे हुआ, मुझे ये थोड़ा समझना है आपसे. बिल्कुल तो मेरा रंजित ये भाई, सवाल था एक छोटा सा. बिल्कुल. अच्छा, और है एक सवाल इसी के साथ कि बोलूं रंजित भाई? Yeah. So Nagraj, if you want to ask, go ahead and ask. So let us see whether those two are okay together. Yeah. Okay. यस. नमस्कार सत्येंद्र भाई, आप सक्सेस स्टोरी सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि हमारा खुद का कुछ स्टार्ट हुआ है ऐसा लग रहा है. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप पहले एक प्रोडक्ट को मींस फाइनलाइज करते हैं कि इसके ऊपर हमें काम करना है, वैल्यू चेन करना है, कुछ प्रोसेसिंग करना है. जैसे कस्टर्ड एप्पल आपने पहले चुना, तो ये आप प्रोडक्ट कैसे, पहला जो चीज है वो कैसे फाइनलाइज करते हैं? यही करना है, मार्केट देख के थोड़ा स्टडी करके करते हैं कि वो क्या प्रोसेस होता है? So बिल्कुल नागराज और रंजित भाई, आप दोनों के सवालों का मैं मिक्स करके मैं आंसर दे रहा हूँ. ठीक है. Satendra, यस. I will also put the third question to you so that you can answer all the three. Okay. So one was that which came up, the thing is, how do you maintain the quality of your product? What training technology do you use? How the knowledge is shared from top to bottom? What is a conflict resolution mechanism? So I thought it was somewhat interrelated to what Nagraj also asked, how things were sorted out on the ground level. So I think if you can take all the three, I know we can look at it and then we can go back to. Correct. And this is the most important related to the any of the product, any of the service, with product or without service कुछ होता नहीं है, कहने का मतलब है. और मैं समझता हूँ कि प्रोडक्ट और सर्विस एक माध्यम है, स्पेशली कम्युनिटी स्टार्टअप में लोगों से जुड़ाव का. तो रही बात, तो मैं राजेश जी, रंजीत जी, नागराज जी का सवाल का कंबाइन जवाब मैं देना चाहूँगा, और वो भी सिंपल चीज में, आसानी से समझ में भी है. कि जैसे स्टोरी है ना दूध और घी की. दूध में अगर मक्खी गिर जाती है तो मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, बट अगर घी में मक्खी अगर गिरती है तो मक्खी को फेंकते हैं, घी को नहीं फेंकते हैं. उसका रीजन ये है क्लियर कट, क्योंकि घी तभी बनता है तब के पका के. तो मैं वैसा ही हूँ कि मेहनत और कर्मा कर के मतलब यहाँ पे आया हूँ. और रहा सवाल कि मार्केट को देख के करना है या लोगों को देख के करना है या जमाने को देख के करना है, इसमें मेरा सोच ये है, और हमने ऐसे ही किया है, जो आपका अनुभव है और जो आप सबसे आसान पहले कर सकते हैं उसी के साथ आपको जाना है. कोई भी चीज हो सकती है वो. अब उसमें आपको एक चीज टेस्ट करना है. मार्केट में जाने के बाद में या तो आपको कंपटीशन मिलेगा या उसका मार्केट मिलेगा, या आपको मार्केट क्रिएट करना पड़ेगा. तो क्रिएट करना है तो यू हैव टू डू योर हार्ड वर्क विथ योर टीम मेंबर. दैट्स द की थिंग.
Related to the conflict resolution, related to the quality maintain, yes, this is the key aspect. ये बहुत बड़ा फैक्टर है. इसके लिए हमने क्या किया है, what we did. सबसे पहले तो मैंने जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कैसे रन करना है, इसका मैंने बखूबी ट्रेनिंग लिया हुआ है. एक मतलब उसका सुपरवाइजरी कोर्स किया हुआ है. फर्स्ट आई डिड, आफ्टर दैट मेरे 2 फार्मर ने किया है. मैंने तो किया है, मेरे साथ में 2 फार्मर को भी करवाया हूँ 1 साल बाद में. पहले मैं सीखा, सब चीज़ बताया कैसे कैसे होना चाहिए, फिर मैंने फार्मर को बताया. फर्स्ट थिंग. सेकंड, जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्वेशन को लेके है, तो वी हैव अ क्लियर कट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सबका काम बटा हुआ है, तो वो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से काम होता है. गलतियां सबसे होती है, 19-20 सबसे होता है, क्योंकि पांचों फिंगर बराबर नहीं होते हैं. तो उसको जो है अपन बैठ के सॉल्व करते हैं, उसको बैठ के सॉल्व करते हैं. और अगर बाय डिफॉल्ट कभी प्रोडक्ट में फॉल्ट भी अगर हमारे पास में आ जाता है, तो हमने हमारे कस्टमर के प्रोफाइल के हिसाब से लो मीडियम हाई वैसे बना के रखा है. उस हिसाब से चीजों को हम एडजस्ट करते हैं. दैट्स द मेन थिंग. Yeah. So I'll go back to Ganesh. Is he there to ask his question? Ganesh? Yeah, I'm here. So Satendra bhai, I was wondering about one thing about the political interference. One, and second is, what is your take on the state government? I mean, are they really looking to have kind of a startup that you are doing, or they are they doing, are they giving a what more attention to kind of work that you are doing? I was wondering about your take on the state government and the center. Okay, so just trying to also join what Sujit was saying. He put it in his chat to say that how did you deal with, because you are doing with non-timber forest produce, how was your relationship with the forest officers and all that stuff? So Okay. if you can just give a little more idea about how you dealt with the government officials and the forest officials, it will be great. Yeah, Satendra? Correct. Yes. So last week before, Chief Minister of Chhattisgarh invited in Jagdalpur, Bastar, even Mr. Rajat Bansal, collector, is there. We have discussions with that and supporting. They are willing to support our social enterprise through government intervention. So related to the forest department, or we can say bureaucracy or politics. Yes, politics हर जगह मिलेगी. उससे कैसे निपटना है या कैसे सामना करना है, उसके कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं. फर्स्ट थिंग, तो उसका सबसे पहला टूल्स एंड टेक्निक्स ये है कि जिनका भी पॉलिटिकल हेवी वेट या लॉबी या कहीं पंच सरपंच कुछ होते हैं जनपद में, जिला में, उनसे हमारी कोर टीम काफ़ी दूर है. देर इज़ अ नो रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल पर्सन. इवन विलेज लेवल पे क्यों ना हो पॉलिटिकल पर्सन हो. मुझे अन्नपूर्णा जी का वो क्लास याद आता है, बीजेपी और कांग्रेस वाला. तो वो चीज़ें तो क्लियर रखा है हमने. तो मेरे साथ जो है वो नॉन पॉलिटिकल पर्सन है, जो भी हमारे साथ काम कर रहे. हो सकता है उनका बाहर में कुछ अलग होगा, तो नहीं पता. रिलेटेड टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अलग जो ब्यूरोक्रेसी है, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का भी क्लियर मैंडेट है कि फॉरेस्ट में, जंगलों में, गांव में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना चाहिए, कहने का मतलब है. तो उनका भी वही मैंडेट है, हमारा भी वही मैंडेट है कि लोकल लोगों को रोजगार मिलना चाहिए. ऑफिसर्स भी उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, हम भी उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं. तो उसमें कोई अभी तक खटास या खट्टा मीठा अनुभव नहीं रहा है. हो सकता है फ्यूचर में होगा, क्योंकि कहते नहीं आता है कि आज वो ऑफिसर है तो कल भी वही रहेगा. बट हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो अप्रोच है, उसमें पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी से थोड़ी दूरी बना के हमने रखा हुआ है. मतलब मेन चीज. कैसे कैसे सॉरी. अच्छा, कैसे? हाँ. अच्छा, हाउ. या. ओके. सो हाउ ऐसा है कि जो मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, तो जो ऐसे मिडल मैन वगैरह या जो अदर लोग जो होते हैं,
वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में परचेस नहीं करते हैं। हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस से इवन ज़्यादा पैसे पे हम लोग वो चीज़ों का जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो हम प्रोक्योरमेंट करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि उनको भी वही चाहिए कि लोग ऐसे आए प्राइवेट प्लेयर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर को दे, और है तो उसका प्रोक्योरमेंट प्रोसेसिंग करे, ये चीज़ है। और तीसरा महत्वपूर्ण ये है कि जैसी कोई स्कीम्स वगैरह होती है डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की, तो स्कीम्स में हम ऐसे अप्लाई वगैरह करना है एज अ सोशल एंटरप्राइज नहीं करते। इंडिविजुअल फार्मर के लिए हम कर देते हैं, इंडिविजुअल फार्मर के लिए हम करते हैं स्कीम अप्लाई के लिए जो भी उसका बेनिफिट हो, बट हम सोशल एंटरप्राइज में गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं लेते हैं। बात ये चीज़ है। So I'll go क्यों back कि to अगर उनका सपोर्ट आया तो फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है फ्यूचर में। बात ये है। So I'll also say that you can always connect offline with him, and Satyendra still keeps his APU ID alive. So I still use यस। Satyendra's APU ID. So if anybody wants to contact back, you can use Satyendra's APU ID, and he पक्का। still replies back to that. यस। So Parvesh, I'll give you a chance again to ask a couple of questions. हेलो सत्येंद्र सर। जी। जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तब मैंने ऐसे सुना था उनकी तरफ से कि गवर्नमेंट एपीओ की लिमिट लगा रही है डिस्ट्रिक्ट वाइज। ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, अनटिल एंड स्टेट का पावर हाई सुप्रीम होता है, ठीक है। स्टेट रातों रात रूल्स बदल देती है, पार्लियामेंट में लॉ पास हो जाएंगे, पॉलिसी चेंज हो जाएगी, वोट बैंक बढ़ जाएंगे, उसकी अलग अलग धारणाएं हैं, ठीक है। तो उसमें मेरे तरफ से कोई मतलब कमेंट्स तो नहीं होना चाहिए, बट एफपीओ बनना चाहिए। कहने का मतलब है वो फार्मर के लिए बेनिफिशियल है, और हम जैसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोफेशनल ने उनके साथ में लिंक करके काम करना चाहिए आगे। बस यही है, सिंपल। Sujit, do you want to ask another question, or is no? Nagraj, are you going to ask another question, or No. nothing? Okay. Sujit, okay. So I think it was a quite a 1 hour nice talk, and I just tell everyone, if you want to talk to Satyendra a little more, you can always get back to him. I think at least he's not going to say no to it. If people are going to talk to him and say uh, to guide him a little, I think Satyendra will always be there. Is it not? है ना सत्येंद्र? यस यस यस, एब्सोल्युटली सर। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हमारे यूनिवर्सिटी से जो भी स्टूडेंट जहाँ भी है, जैसे भी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आने वाले समय में थोड़ा सोचना चाहिए कि एंटरप्राइज अपना प्रमोट करे। कोई भी हो सकता है, वो ह्यूमन राइट एक्टिविटी हो सकती है, इन्वायरमेंटल हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, हेल्थ हो सकता है। क्यों कि अगर हम लोग एक एक इंटरप्राइज करते जाएंगे, जैसे कहानी है ना इरमा की, इरमा का अगर जैसे राजेश जी से भी ड्यूरिंग द क्लास में मेरा डिस्कशन हुआ था एक बार, मुझे याद है कि इरमा के जो स्टूडेंट्स होते हैं कि फील्ड वगैरह को लेके, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे एपीयू से भी स्टूडेंट बाहर आए, 3 साल काम करें, और जैसे भी हो, छोटा हो, मध्यम हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, खड़ा करे, एटलीस्ट एक लोगों को, 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। एटलीस्ट 10 गांव नहीं, 2 गांव में ही काम करें, धीरे 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 धीरे, तो आने वाले समय में वो चेंज कंट्रीब्यूशन होगा। हमें भी इस चीज़ का नहीं पता था कि हम ऐसा करेंगे। और अभी रिसेंटली वो एक डॉक्यूमेंट्री टाटा ग्रुप ने शूट किया है, तो उसमें हमारे फार्मर खुद बोल रहे हैं कि हमन मन ये कंपनी ला आगे बढ़ाबो, तो हमन मन के बच्चे के लिए अच्छा होगा। मतलब वो खुद बोल रहे हैं कि हम लोग इस कंपनी को दूर तक लेके जाएंगे, तो हमारे बच्चों के लिए आने वाले समय में अच्छा होगा। और मैं रो रहा हूँ, क्राई कर रहा हूँ कि मैं बिना ट्रेनिंग का, बिना बताए ये लोग बोल रहे हैं। और वो इंटरव्यू लेने वाला भी मतलब सोच रहा है कि इतना बढ़िया ये चीज़ बोल रहे हैं। तो हमें ये लगा कि हमने एपीयू में जो पढ़ाई किया, और एटलीस्ट एक फार्मर की फैमिली में भी अगर हमने कुछ चेंज लाया, हमारा जिंदगी का नैया पार है, कुछ तो अच्छा कर लिया। ये चीज़ है, कहने का मतलब है। Okay. मैराडा का जब हमारा विजिट था लाइवलीहुड की क्लास में, तो कितना डिस्कशन हुआ था हमारा कि कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, कैसे
सैलरी मिलती है, कितनी सारी चीज़ें होती है। अंगार जल रही थी, पराग जी, राजेश जी और हम बैठे हुए थे, ताप के डिस्कशन कर रहे थे। तब हमने सोचा भी नहीं था कि ये करेंगे। सर ने अपना लेबर नेट के बारे में बताया हुआ था, वो सारे इसमें। तो वो है, कहने का मतलब है कैसे कैसे चीज़ें हो जाती है। हम भी एक्सीडेंटली आए हैं, कहने का मतलब है। बट यस, अपने आप को जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। हु आई एम, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। दो तीन चीज़ें होती है, बस उसमें वो है चीज़ें तो निखर के आ जाएगी। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि एक डेढ़ साल में हमें 8 या 9 ऐसे नेशनल इंटरनेशनल मतलब रिकॉग्निशन मिलेगा, सीएम से मिलना पड़ेगा, या हो सकता है लास्ट ईयर कोरोना था तो प्राइम मिनिस्टर के सामने में प्रेजेंटेशन था हमारा अप्रैल में। तो वो समय समय की मतलब बात होती है, बात ये है। और मैं नहीं बोलता कि मैं क्या, मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरे फार्मर भी सुन रहे हैं जहाँ पे मैं रहता हूँ, कि देखो मैं ये कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। हो सकता है कल चल के प्लेटफॉर्म पे आपको बोलना पड़े। यहाँ से रोहित जी हमारे यहाँ आए थे, प्रदीप जी आए थे, उनका कहना था, भाई साहब अगर आप ना 2,000 रुपये पर डे भी अगर आप दोगे ना किसी को, तो वो लोग भी आपके लिए इतना मर मर के काम नहीं करेंगे। उन्होंने खुद देखा है, इतने मन लगा के काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये हमारा ही है, ये सारा सामान यहीं रहना है, यहाँ से मैं कहीं भी लेके नहीं जाऊंगा। और ये चीज़ अगर आज अच्छी हो जाएगी तो कल उनकी फैमिली, उनके बच्चे और बाकी सब लोगों के लिए काम में आएगी। तो वो जो चिंगारी, हो चिंगारी लगा दी है हमने बस। Thanks, Satendra. I think Vishal has put his hands up. So I'll give his last chance to Vishal and then we can close. Yeah, Vishal? Yes, yes. Thank you. Hello, Satyendra and all. पाटिल जी नमस्कार। Namaskar, namaskar. So, this one. My question is that there are many organizations which works under the Cooperative Act, Societies Act, and the FPO registered under the Companies Act. So just I know the difference is there, but if for the others also, can you explain what is the major differences between these two? And I want to know, just another question is there. You belong to Maharashtra, Gondia, and you are working in Bastar, the most Naxalite area of India, also, or most aspirational area of India. You can say that. So, what is your motive to work in especially that area? Yes, please. So Vishal, I'm not going to allow Satendra to answer the first question. I think that you can get the answer in the university with any teachers, okay? Because, Yeah. but I will let go the second one for Satendra to answer. Yeah, just Is follow that up. okay, Vishal? Just Yeah. just an add-on. Yeah, sure. पक्का पक्का। Just an add-on. As we know, the Bastar is known for left-wing extremism. Have you faced any issues from them while working in that field, in their field? Yes, yes. Before starting our intervention, or we can say model, yes. So that's why चारों तरफ आँख, कान, नाक, गला सब खुला करके भी started this model ना, और made this model. So for example, we are not doing tree, यानी पेड़ नहीं काटना है, रोड नहीं बनाना है, बिल्डिंग नहीं खड़ी करनी है, टेंडर नहीं लेना है, ह्यूमन राइट एक्टिविटीज नहीं करनी है लोगों को भड़काने के लिए। सो हम क्या कर रहे हैं इन सिंगल वन सेंटेंस, क्रिएटिंग वैल्यूज फ्रॉम स्टैंडिंग फॉरेस्ट, नो प्रॉब्लम टू देम, सिंपल चीज, ठीक है। एंड वी हैव अ बिगर प्लान फॉर बस्तर प्रोबेबली आफ्टर 2024। हमारे पास है कि कौन कौन से डोमेन में काम करना चाहिए यहाँ पे, और वो नीड भी है लोगों के लिए, कहने का मतलब है। बट एक साथ अपन सारे चीज़ों में काम नहीं कर सकते ना, रिक्वायर्ड पीपल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें लगती, तो स्टेप बाय स्टेप अपन अपने एक एक चीज़ें यहाँ करेंगे। और रिलेटेड टू द जर्नी फ्रॉम गोंदिया टू बस्तर और नवेगांव टू बस्तर, सो ये चीज़ क्लियर कट था, और ये चीज़ मुझे समझ में भी आ गई थी कि जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों में डिफरेंस है। और अराउंड द कंट्री, अराउंड द ग्लोब, ऐसे एन नंबर ऑफ पर्सन हैं जिनकी जन्मभूमि अलग रही है, कर्मभूमि अलग रही है। और मैंने भी डिसाइड किया कि मेरा कर्मभूमि छत्तीसगढ़ के बस्तर में रहेगा, बट उसके साथ मेरा क्लियर कट एक पर्पज़ है कि मेरा जो स्किल है,
मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो अनुभव है, या मेरी मम्मी का जो या मासी का जो आशीर्वाद है, हमारे दोस्तों का जो ब्लेसिंग है, उसका जो उपयोग है, उसका जो यूज़ है, वो ज़रूरतमंदों के लिए करना है। ये नहीं कि अमीर को और अमीर बनाना है, कहने का मतलब है। तो अगर वो चीज़ अपन किसी ज़रूरतमंद को अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं, और वो हमें अगर एक गिलास पानी भी अगर पिला देता है, वेल एंड गुड। तो वो जो चीज़ का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे को बस्तर में मिला, कहने का मतलब है। यहाँ के लोग खुद बोल रहे हैं, जैसे मैं एक बार एम्स में भर्ती था, तो पूरे पूरे किसान लोगों ने मेरा किडनी स्टोन के लिए हेल्प किए। अभी मेरी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था, तो बोल रहे कि मम्मी को आप लेके आओ, हम पूरा सेवा वगैरह करेंगे। मेरे रिश्तेदार भी नहीं ये चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, बट यहाँ के फार्मर, तो वो जो लोगों को अपना बनाने की जो अपना बनाने का है, एक तो उनके साथ मिल जाओ या उनको अपना बना लो। तो उस कॉम्बिनेशन में हमने गोंदिया से बस्तर की यात्रा की। हो सकता है मुझे वहां नहीं मिला जो मुझे यहाँ मिला, कहने का मतलब है। तो शायद अगर मैं ये दूसरी जगह करता तो 5 साल लग जाते। यहाँ पे डेडिकेटेड डिटर्मिनेटेड पर्सन मुझे मिले, तो हो सकता है बहुत कम समय में अच्छा हो गया। दैट्स द मेन थिंग। So with that, Satendra, I think I will end it. But I'm very sure I will come. We'll invite you 2 years back after that with your own dreams when you said that you want to set up a factory uh, with that story, पक्का right, सर, in पक्का this पक्का, forum मोस्ट again. वेलकम सर, पक्का Yeah. जरूर आइए, आप सभी आइए, अच्छा लगेगा। Okay. So with that, Nikhil, I'll give back to you for the thing. Yeah. Yeah, thank you, Satendra. Thank you, Rajesh, for such a wonderful webinar. Uh, Thanks to all the participants who were here. We had a great webinar. Got to learn a lot from Satendra, and I hope you all get a chance to visit him soon in Bastar. पक्का All पक्का, right. हमें भी अच्छा Thank you. लगेगा कि Thank you, Satendra. थैंक यू सो मच, आप सबने सुना, टाइम दिया, अपना अटेंड किया, आप सभी को धन्यवाद। राजेश जी आपको भी, पद्मा जी की टीम। Thank you, Satendra. Thank you, Rajesh, for अनुराग hosting जी this धन्यवाद। wonderful webinar. And Satendra, I hope you go from strength to strength. आप बस्तर को बाजार तक और बाजार से आगे भी ले जाएंगे. So thank you for participating and very जरूर very मैम, जरूर inspirational. जरूर, पक्का। आपका अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी का टी शर्ट देख के मुझे बहुत खुशी हुई. मैम मैंने बहुत संभाल के रखा हो, ये चीज कहने का मतलब है, और ये मैं लास्ट तक रहेगी, जब मैं 60 का भी हो जाऊंगा तो मेरे पास रहेगी ये चीज है। Wonderful, wonderful. That is our connection. ये Yes. चीज है। Thank you, Satendra. Thanks, Rajesh. थैंक यू, Thank Thank you, you. Thank you, Nikhil, and everyone. thank you Yeah. for a wonderful audience. Thank you. Thank you. Thank you.